Okay. Mr. X, the assessment year. So Mr. X, Chennai, where Chennai is a metro city. Get rupees 3 lakhs per annum as a basic salary. Annual salary 3 lakhs per annum. Dearness allowance forming part of salary or service benefits rupees 40,000 per annum. Okay, dearness allowance 40,000. He will get. So we will calculate basic. So turnover achieved by him during the relevant period is rupees 3 lakh. Yes. So he received rupees 60,000 as HRA. Okay. Yeah. Calculate, now we calculate the HRA. Okay, Mr. X. He resides in Chennai and he gets 3 lakhs per annum basic salary. DA, he will get 40,000 and 2% commission on turnover achieved by him. So let's calculate the basic salary. Come on, quick. How much is salary? Sorry, gross salary. Let's calculate gross salary. Come on, fast. His basic salary is 3 lakhs. Okay. How we calculate commission in basic salary? So you have calculate 2% on 3 lakhs. How much it is? कैलकुलेट करिए 3 लाख के 2% कितना आता है? लेट्स फास्ट. कितना आता है?
Ma'am, 6,000. कितना आ रहा है? थोड़ा Yes, Rutuja, Rahul. Ma'am, और ये 6,000. या करेक्ट. नाउ हमारा जो बेसिक सैलरी है वो कितना आएगा? जैसे 3 लाख हमारा बेसिक है, उसके बाद 2% आया, वो ऐड किया आफ्टर 40,000 डीए हमने ऐड किया. ओके, तो टोटल हमारा जो ग्रॉस सैलरी है वो कितना हुआ है? 3,46,000. अभी हम एचआरए कैलकुलेट करेंगे. ओके, चलिए प्रॉब्लम देखते हैं. यस, नाउ सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए ऑफ मिस्टर एक्स of Chennai. Okay, he'll stay in Chennai. So how much it is? 60,000. HRA received, उसे कितना मिल रहा है? 60,000 as per कंपनी, और जहां पर भी वो सर्विस कर रहा है वहां से उसे 60,000 HRA मिल रहा है. नाउ हमारा जो रूल है HRA का अंडर सेक्शन 10, ओके, तो हमें कितना एग्जेम्पशंस मिलता है वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो एक्चुअल HRA जो हमें मिला है वो 60,000 है, और वो जो वहां पे कर रहा है वो 80,000 पे कर रहा है. ठीक है, तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड हमने यहाँ पे मेंशन किया 60,000. अभी रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी. तो 10% ऑफ सैलरी मीन्स कौन सी सैलरी लेनी है? ग्रॉस सैलरी लेना है जो हमने अभी कैलकुलेट की है. सो ग्रॉस सैलरी में क्या क्या आएगा? ग्रॉस सैलरी में आपका बेसिक सैलरी आएगा, आपका कमीशन आएगा, आपका डी आएगा. ठीक है, तो इन तीनों को मिला के हमने बेसिक ग्रॉस सैलरी हमारा हुआ 3,46,000. उसके 10%, उसका 10% हमें क्या है? एग्जम्पशंस है. ठीक है, तो हमने क्या किया? 10% कैलकुलेट किया, जो आया 45,400 आया है. आता है क्या? कैलकुलेट करिए, यहाँ पे मेरा गलत भी हो सकता है. लेट्स कैलकुलेट 3,46,000 इंटू 10%. सॉरी, 3,46,000 में से आपको 80,000 माइनस भी करने होंगे, क्योंकि वो कौन पेड कर रहा है? एम्प्लॉय पेड कर रहा है. उसके 10% निकालिए. आता है क्या 45,400? Yes or no? And first we have to minus that 80,000 in 3,46,000, right? No, ma'am. The 10% will be 26,600. One second. One second. We need to calculate here. Okay. One second. Yes. First, you have to calculate 10% of 3,46,000. How much it is? Gross salary का 10% पहले calculate करेंगे. It comes 34,600, right? Yes, ma'am. Yeah. Now you minus 34,600 to 80,000.
So 80,000 minus 34,600, it comes 45,400. Got it? Yes, ma'am. Yeah. So just remember this calculation. Okay. First, you have to calculate 10% of gross salary. Then the employee, Mr. Ramesh, who is sorry, what is her name? Mr. A, whatever. So Mr. X paid 80,000, na? So we have minus 80,000 minus 10% of salary. So 45,400 we got it. Okay. Second option is 50% of salary for metro cities or 40% of salary other than metro. So Chennai, it comes in metro city. Okay. So you have to calculate 50% of salary for metro cities. Let's calculate 3 gross salary. What is our gross salary? 3,46,000. So let's calculate 3,46,000 into 50%. Ma'am, 1,73,000. Yes, 1,73,000. Okay. और अगर वो अदर होता था, मेट्रो में नहीं होता था, मान लीजिए वो अगर कहीं पूना में होता था या अहमदनगर में होता था, तो हम उसे 50% से कैलकुलेट नहीं करते थे. ठीक है, हम 40% से कैलकुलेट करते थे. ओके, बिकॉज the expenses depends on the expenses. We know that metro cities expenses are lot. So अभी टैक्सेबल एचआरए, मतलब हमने जो देखो एचआरए का जो ये है कैलकुलेशन है, हमने कैसे किया? पहले उसे कितना मिल रहा था एचआरए? 60,000. वो पे कर रहा था 80,000 एज पर रूल, बिकॉज ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई. तो एज पर रूल हमारा क्या कहता है एचआरए का, कि अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से हमें रेंट पेड जो 10% सैलरी का कैलकुलेट करके देखना है, एंड आफ्टर दैट 50% इफ यू आर स्टेइंग इन मेट्रो सिटीज, उसके 50% भी कैलकुलेट करना है, और विच एवर इज लेस हमको लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, अभी इसमें सबसे कम कौन सा है? विच एवर इज लेस, वो हमें अमाउंट लेना है. तो विच एवर इज लेस कौन है? 45,400. तो वही एग्जेम्पशन हमें, मतलब वही हमें क्या करना है? पे करना है ना, एम्प्लॉयर को पे करना है. तो उसका लेस कितना आ रहा है? सबसे 60,000 ज्यादा है, 1,73,000 भी ज्यादा आ रहा है, तो 45,400, विच एवर इज लेस. सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है क्या ये कैलकुलेशंस में? छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको ये, और प्रॉब्लम देखेंगे हम. वैसे आया क्या समझ में सबको ये कैलकुलेशन एचआरए का, हाउ वी कैलकुलेट एचआरए? राइट. सो नाउ हमारा जो टैक्सेबल एचआरए है वो कितना आएगा? 60,000 माइनस 45,400. तो टैक्सेबल एचआरए जो है वो हमें कितना पे करना है? सिर्फ 14,600 ही पे करना है. ठीक है, बाकी सब एम्प्लॉयर पे करेगा. तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, और स्पेशली मेट्रो सिटी का. सो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का ये दिया हुआ है, हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी. इसी तरह से हमको सारे एचआरए कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए. हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट वी स्टार्ट नेक्स्ट, और यू वांट टू नोट इट? यस, We have taken the snapshot. yeah, okay. Let me start next. Yes, ma'am. Yeah. So determine the taxable portion of HRA Mr. Y assessment year 2020-2021. Let's see. Mr. X resides in Ajmer. Okay, resides in Ajmer. So gets rupees 48,000 per annum as basic salary, and during the previous year 1920. Okay, 1920 का दिया है, तो हमें 2021 का निकालना है असेसमेंट ईयर. सो ही गेट्स रुपीज 48,000, मतलब 10% सैलरी के बेसिक के 10% उसको डीए मिल रहा है, 4,800.
forming part of salary and 7% commission on sales made by him. Whatever 7% commission उसे मिल रहा है. Sales made by him during the relevant period and is rupees 86,000. Okay, so he received rupees 6,000 as HRA. Through he pays a rent of rupees 5,800 per annum. जो 5,800 per annum rent पे कर रहा है, जो जबकि उसको HRA मिल रहा है 6,000. So determine the exempted and taxable HRA. ठीक है, हमें exempted और taxable HRA कैलकुलेट करना है. प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लीजिए. देखिए X जो है वो अजमेर में रह रहा है, तो अजमेर मेट्रो सिटी में नहीं आता है कि आता है. लेट्स सी. और उससे कितना मिल रहा है? 48,000 मिल रहा है पर एनम बेसिक सैलरी. उसका जो डीए है वो 4,800 है और उसको जो कमीशन मिल रहा है फॉर्मिंग पार्ट 7% के हिसाब से मिल रहा है. और उसने जो सेल्स किया है जो भी है, तो वो कितना किया है? सेल्स 86,000 का सेल्स हुआ है उसका. He sales made by him during the relevant period year. अभी यहाँ पे सेल्स दिया है तो हमें सेल्स पे निकालना है या बेसिक पे निकालना है कमीशन, वो हम देखेंगे. He received 6,000 HRA और वो पे कर रहा है 5,800. ठीक है, so हमें exempted और taxable HRA कैलकुलेट करना है. Now अभी देखिए HRA received 6,000. ठीक है, list of the following is exempted under section 10. Let's see. So actual, same formula, actual HRA received 6,000. Rent paid 10% of salary. Rent paid 10% of salary. अभी यहाँ पे नील क्यों आया बताइए, कैलकुलेट करिए. उसका जो रेंट है वो कितना पे कर रहा है? 5,800. ठीक है, तो वैसे ही कैलकुलेट करिए. पहले तो आप ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करिए, कितना आता है आपका ग्रॉस सैलरी? ग्रॉस सैलरी कितना आता है बताइए. कम ऑन, जब भी जैसे किया था वैसे ही करिए. दो के पॉइंट, कम ऑन. 58,820 आता है क्या ग्रॉस सैलरी? 58,800. 58,820. Yes. Right? Yeah, very good. So अभी हमने 10% कैसे कैलकुलेट किया था? सेम 58,820 के कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 10%. कितना आएगा? 5,882. ओके, और हम पे कितना कर रहे हैं? 5,800. तो 5,800 में से 5,882 तो माइनस में आएगा, तो नील है ना. मतलब 10% ऑफ सैलरी 0 आएगा. रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी 0, मतलब नील आएगा. गॉट इट? Yes, ma'am. See, don't be hesitate to ask me a questions. Okay, if you have doubt, please ask me. Okay, आप इस भ्रम में मत रहिए कि नहीं आ रहा है, स्क्रीन सामने है तो हम कर लेंगे. बट योर कंसेप्ट और डाउट क्लियर होना जरूरी है. ओके, सो ये नील आएगा. नाउ 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो सिटीज और 40% ऑफ सैलरी अदर देन मेट्रो. तो चलिए कैलकुलेट करिए और बताइए 40% के हिसाब से कैलकुलेट किया है या 50% के हिसाब से कैलकुलेट किया है. कम ऑन. 40%. या करेक्ट, 40%. बिकॉज अजमेर जो है वो मेट्रो में नहीं आता. अगर वहां पे दिल्ली मेंशन किया होता था, जैसे पुणे या मुंबई मेट्रो में आता है, लेकिन अहमदनगर में मेट्रो में आता है क्या? नहीं. मंचर मेट्रो में आता है क्या? नहीं. ओके, बेसिक सिटी मतलब जो पर्टिकुलर सिटी है उसी का. तो ये अजमेर में है तो अजमेर
नॉन मेट्रो में आता है, तो इसलिए हमने 40% के हिसाब से कैलकुलेट किया। ओके, सो कितना आता है आपका 40%? 23,528. यस, 28, करेक्ट। तो अभी जो हमारा ये रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा, वो कितना आएगा? नीली रहेगा, क्योंकि जो भी एचआरए है टैक्सेबल वो 6,000 ही है ना? विच एवर इज लेस, फॉर्मूला वही, विच एवर इज लेस तो नील, तो हमने नील लिया, 0 लिया, है ना? तो हमारा जो टैक्सेबल एचआरए है वो 6,000 आया। तो हमें 6,000 ही एचआरए पे करना है पर एनम के हिसाब से, जो भी होगा। गॉट इट? समझ में आया? Yes, ma'am. लेट वी सी नेक्स्ट, आगे बढ़े। Yes, ma'am. नेक्स्ट, determine taxable portion of HRA Mr. A assessment year 2021. Okay, Mr. A reside in Salem. He is a government employee and gets the following exemptions, emoluments in previous year 1920. His basic salary rupees 50,000 per annum, and dearness allowance getting 30,000 per annum, bonus getting 10,000 per annum. देखिए, medical allowance getting 2,800 per annum, HRA getting 2,500 per annum. So he residing in a house for which no rent is paid by him throughout the year. कंपनी ने उसको दिया होगा अकोमोडेशन, तो उसे रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी, अगर इस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें कैसे एचआरए कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अच्छे से देख लीजिए वो कौन है। सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और यहाँ पे दिया नहीं है वो कहाँ रह रहा है, तो दिया नहीं है तो हम नॉन मेट्रो का ही कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट? बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसे बेनिफिट्स ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक सैलरी उसका 50,000 है, डियरनेस अलाउंस ही विल गेट 30,000, बोनस ही विल गेट 10,000, medical allowance will get 2,800 per annum, and HRA. So whole gross salary be calculated. Let's see. Okay. अभी यहाँ पे आएगा ही नहीं, यहाँ पे आपका आंसर इस तरह से आएगा कि HRA exempted, क्योंकि वो कंपनी ने प्रोवाइड किए हुए अकोमोडेशंस में रह रहा है, तो नील है ना? जो भी है एचआरए वो कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा, तो एम्प्लॉय को पे करना ही नहीं है तो टैक्स आएगा ही नहीं इस पे, है ना? तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है कि एचआरए एग्जम्प्टेड इज नील सिंस मिस्टर ए reside in Salem and stay in a house where does not pay any rent. So HRA is fully taxable, and taxable HRA is 2,500 into 12 of rupees 30,000. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट। सो नेक्स्ट टैक्सेबल, नेक्स्ट एचआरए कैलकुलेट करेंगे हम मिस्टर जेड का। ओके, सो मिस्टर जेड हु लिव्स इन कोयम्बतूर, चेन्नई में आता है ना, with his family in his own house, is employed in private company. Now he is private limited company. He get basic salary rupees 2,000 per month, dearness allowance rupees 500 per month, and 30% is not considered for retirement benefit. वैसे 30% consider करना नहीं है। ओके, सो allowance जो है उसका वो 2,000 per month है, एचआरए उसका 4,500 पर मंथ है, पर मंथ, पर एनम नहीं दिया है। आपको पर मंथ इंटू 12 करके उसको कैलकुलेट करना है। फ्रॉम 1st December 2019 he lived in a rented house paying rent of rupees 5,000 per month. कब से रह रहा है वो? 1 दिसंबर 2019 से, तो हमें वहीं से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
computation of taxable HRA of Mr. Z of Coimbatore for assessment year 2021. प्रॉब्लम, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ये लिखना जरूरी है. इट्स अफेक्ट्स ऑन योर मार्क्स. ओके, 2 मार्क्स होते हैं उस पे. चलिए, अभी हम सबसे पहले तो उसका एचआरए निकालेंगे. एचआरए उसे कितना मिल रहा है एज पर प्रॉब्लम के हिसाब से? उसका बेसिक जो है वो कितना है? he get basic salary 2000 पर मंथ, है ना? ये 2500. तो कैलकुलेट करो कितना आता है एचआरए रिसीव्ड. यहाँ पे 4500 इंटू 4 किया हुआ है. कैसे कैलकुलेट किया बताइए, कोई बता सकता है? व्हाट इज द लॉजिक? यस, कैसे कैलकुलेट किया? क्वार्टरली बेसिस. बेटा क्वार्टरली बेसिस कैसे, बताइए ना. तो यस, यू आर गोइंग करेक्ट, बट थोड़ा सा पुश करिए और ब्रेन को. लेट्स सी प्रॉब्लम. यह है कि वो कब से रेंट रह रहा है? वो दिसंबर से, 1 दिसंबर 2019. ओके, और हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो हम कब से कंसीडर करते हैं? अप्रैल टू मार्च. गॉट इट? और इस प्रॉब्लम में हम उसका एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं 2021 का, है ना? मतलब मार्च 20 का हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अभी हमने दिसंबर का लिया, जनवरी का लिया, राइट, फरवरी और मार्च. गॉट इट? और मंथ. यस. नाउ कैलकुलेट करिए उसका एचआरए कितना है, वो कितना पे कर रहा है. एचआरए उसको कितना मिल रहा है? जो मिल रहा है वो हमें लेना है 4500 पर मंथ, राइट? तो 4500 पर मंथ इंटू 4 करेंगे, एक्चुअल वाला जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो आता है 18,000. उसे आउटसाइडर में लिख लीजिए. नाउ अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से कैलकुलेट करिए. चलिए, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना? 18,000, जो अभी हमने लिया 4500 इंटू 4. अभी रेंट पे 10% ऑफ सैलरी. सबसे पहले तो ग्रॉस सैलरी निकालिए आप. कितना आता है आपका ग्रॉस सैलरी? उसके 10% लीजिए. तो ग्रॉस सैलरी कितना है आपका? 9400. ओके, तो 9400 का 10% 940. ओके. जो आपको एक्चुअल मिल रहा है 5000 इंटू 4, है ना? यहाँ पे हमें 4 मंथ का ले तो 4 ही लेना होगा. गॉट इट? यस मैम. तो 5000 इंटू 4 अगर आप करते हैं तो कितना आता है आपका? 20,000. राइट? 20,000 में से जो भी आपने 10% निकाला है वो माइनस करिए. यस मैम, 19060. यस, करेक्ट. अब हमको थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें आइए उसमें देखिए. अभी 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो सिटीज और 40% ऑफ सैलरी ऑफ अदर देन मेट्रो. तो ये किस में आता है? मेट्रो में आता है, नॉन मेट्रो में आता है? ग्रॉस सैलरी के 40% कैलकुलेट करिए. यस, करेक्ट. ग्रॉस सैलरी के 40% हम कैलकुलेट करेंगे. So let's we calculate how much it is. 3760. Very good. So now you have to decide whichever is less, 18,000, 19,060 or 3760. 3760, whichever is less. हमें जो भी इन तीनों में से जो भी है, हमारा रूल है ना? एचआरए का जो रूल है हम वो फॉलो कर रहे हैं. फर्स्ट रूल है एक्चुअल एचआरए, सेकेंड रूल है 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी एंड थर्ड रूल है 40% और 50%. तो ये तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वही हमें लेना है. तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा है? 40% वाला जो है. तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया
3760। अब माइनस करिए, आपका जो एक्चुअल एचआर है 18,000, उसमें से जो हमने कैलकुलेट किया एचआरए 3760, तो आपका जो टैक्सेबल एचआरए है जो आपको पे करना है वो कितना आएगा 4 मंथ का 14,240। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ No, में आ ma'am. रहा है? यस। Yes, ma'am. So our taxable HRA is 14,240. Next, let's we say next. Yes, ma'am. Again, determine the taxable portion of HRA. चलिए इसे आप करिए फटाफट। चलिए, Mr. R who lives in Trichy received rupees 1 lakh per annum as basic salary and rupees 30,000 per annum as dearness allowance. Then 2/3 of is the forming part of salary. Okay. So, and he also receives commission rupees 1,000 per month. Okay. Bonus rupees 15,000 per annum and HRA rupees 24,000 per annum. Per annum per month में ध्यान दीजिएगा. Rent paid in Trichy rupees 30,000. So let's calculate. ये आपको यहाँ पे नोट दिया है कि कमीशन ऑन परचेस 1%, परचेस रुपीज 40,000, कमीशन ऑन प्रॉफिट 2%, प्रॉफिट रुपीज 50,000. चलिए बताइए फटाफट कितना आना चाहिए इसका ग्रॉस सैलरी निकालिए, इसका एचआरए निकालिए. एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड दिया है प्रॉब्लम में 24,000 उसे मिल रहा है. अभी अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से हम उसे कैलकुलेट करेंगे. एचआरए हमें 24,000 मिल रहा है, रेंट पे 10% ऑफ सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी निकालिए. ग्रॉस सैलरी कितना है आपका, कैसे कैलकुलेट करना है? 1 लाख पर एनम मिल रहा है. ओके, और क्या आएगा? डी आएगा, है ना? Yes, ma'am. उसे भी लीजिए, कैलकुलेट करिए कितना आता है आपका. हम्म 1,20,000. 1 लाख 20,000. 20,000 और 30,000. Ma'am, 20,000. How it is calculate? Ma'am, it's How you 1 calculate? third of is forming part of salary. Yeah, correct. Yes, करेक्ट. सो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में दिया है कि 2/3 ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी. सो हमें 2/3 निकाल के जो भी पोर्शन है वो सैलरी में ऐड करना है. तो इट इज कम्स 1,20,000. ओके, नाउ 1,20,000 के 10% निकालिए और एक्चुअल आपका कितना है? 30,000 पेड कर रहा है वो, है ना? तो वो माइनस करिए. 30,000 में से आपका 1,20,000 आ रहा है ग्रॉस सैलरी, उसका 10% आएगा 12,000. सो और वो जो रेंट पे कर रहा है वो है 30,000. तो 30,000 माइनस 12,000 इट इज 18,000. यस 18,000. नाउ नेक्स्ट देखिए, 50% ऑफ सैलरी आएगा कि 40% आएगा, वो कैलकुलेट करिए. ग्रॉस सैलरी के 1,20,000 के 40% आएगा ना त्रिची. Yes, ma'am. वो आता है आपका 48,000. यस, विच एवर इज लेस. 18,000. करेक्ट. टैक्सेबल एचआरए आप निकालिए, जो एक्चुअल एचआरए है उसमें से
18,000 माइनस करिए और आपका टैक्सेबल HRA कैलकुलेट होगा जो है 6,000। नेक्स्ट, अभी हम निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। HRA सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? डू प्रैक्टिस 1 or 2 times, so whatever the concept of HRA, okay, if the person is staying metro or non-metro, and the calculation, okay, the rules, 3 rules, that is actual HRA received, then 10% of gross salary, and third is 40% of 50%. If you remember these 3 rules, so you have calculated HRA very well. Okay, now we calculate gross salary if provident fund is given, recognized provident fund and unrecognized provident fund. So let's see. So the problem is, Smitha is an employee of a partnership firm. She submits the following information: basic salary rupees 30,000 per month, dearness allowance rupees 8,000 per month, 1/4 of which is part of salary for retirement benefits. Okay, 1/4. And employees contribution to provident fund rupees 4,000 per month. Okay, employee का contribution. So Smitha makes an equal contribution. Of course, अगर वो 4,000 पे कर रही है तो employer भी 4,000 पे करेगा. So interest credited at the rate of 15% is rupees 30,000. Commission received rupees 10,000 based on turnover, and fixed commission rupees 3,000 per month. Bonus rupees 5,000. Children hostel expenditure allowance received for 3 of her children rupees 15,000. Okay, let's see. चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम स्मिता का ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आएगा आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. ठीक है, फिर हम उसको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में करेंगे. तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिसेस स्मिता फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021. ठीक है, तो हम बेसिक सैलरी लेंगे. सबसे पहले बेसिक सैलरी में हम क्या क्या लेंगे? बेसिक सैलरी उसका कितना है? 30,000 पर मंथ. तो 30,000 इंटू 12 करेंगे. यहाँ पे उसका दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है, डेट वगैरह दिया नहीं. अगर डेट दिया है तो फ्रॉम डेट से लेके अपना जो मार्च एंडिंग है तब तक का ही हमें कैलकुलेट लिया है, जैसे हमने प्रीवियस HRA में कैलकुलेट किया था 4 मंथ. ओके, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हमें डायरेक्टली लेना है. सो 30,000 पर मंथ इंटू 12, हाउ मच इट इज? 3,60,000. करेक्ट. नाउ हम DA कैलकुलेट करेंगे. तो DA के लिए हमें क्या बोला है? फॉर सर्विस बेनिफिट. तो उसमें दिया है DA के लिए कि DA रुपीज 8,000 पर मंथ मिल रहा है, और जिसका 1/4 विच इज अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमें, या फिर जैसे भी है. तो 8,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1/4 कितना आता है? देखिए 24,000 आता है क्या? कैलकुलेशन आप करिए. ओके, आया क्या? Yes, ये हो गया आपका 1/4 का. अभी जो अदर फोर्थ बचा है, 3/4 है ना, उसे भी हमें कैलकुलेट करना है. DA फॉर अदर, ये तो सर्विस बेनिफिट का कैलकुलेट किया हमने, जो हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है कि DA इज 8,000 पर मंथ एंड 1/4 ऑफ विच इज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. तो दोनों भी हमें कैलकुलेट करने हैं क्योंकि वो हमें ही मिलने वाले हैं. बट आफ्टर रिटायरमेंट, वो मिलेगा हमें आफ्टर रिटायरमेंट के बाद.
आता है 72,000। Yes, ma'am. यस, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में निकालिए 96,000। उसके बाद क्या दिया है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ₹4,000 पर मंथ। ओके, कितना दिया है? 4,000 पर मंथ। तो 4,000 पर मंथ इंटू 12 कितना आता है? 48,000. या exempted 48,000 लिया है। Why it is exempted? क्यों exempt है ये 48,000? Anyone? Okay. See, let's read. क्या दिया है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, ये एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, इसीलिए ये एग्जम्प्टेड है। हमने देखा था कि प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर पेड करता है ना, और एम्प्लॉय की जो सैलरी से कटता है वो टैक्सेबल है। ठीक है, बट उसका भी लिमिट है, उतना ही अमाउंट टैक्सेबल है, ज्यादा अगर मिल रहा है तो ये एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड है जो एम्प्लॉयर पेड करेगा, तो एम्प्लॉयर टैक्स पे करेगा। हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? स्मिता का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो स्मिता पे नहीं कर रही है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट रहेगा, नील आएगा। गॉट इट? एनीवन हैव डाउट? No, ma'am. Yes. Now, second one, interest credited to PF. It's also exempted because कौन पे कर रहा है? Employer पे कर रहा है. Yes. So interest whatever the मिल रहा है वो तो मिलेगा स्मिता को ही, बट पे उसे नहीं करना है, पे एम्प्लॉयर करेगा। तो इंटरेस्ट जो भी मिलेगा उस पे भी जो टैक्स आएगा वो एम्प्लॉयर पे करेगा। सो स्मिता के अकाउंट में वो क्या आएगा? एग्जेम्प्ट आएगा। ओके, नाउ कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या दिया है कि कमीशन रिसीव्ड ₹10,000 बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये तो आएगा क्योंकि टर्नओवर स्मिता का मतलब कंपनी का है, स्मिता के अकाउंट स्मिता ने किया है, तो 10,000। देन फिक्स कमीशन। ठीक है, फिक्स कमीशन ₹3,000 पर मंथ। उसका जो कमीशन है वो उसे कितना मिल रहा है? 3,000 पर मंथ के हिसाब से उसे डेली मिल रहा है। तो 3,000 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो 36,000 पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। देन उसे बोनस मिल रहा है 5,000। ठीक है, वो भी ले लिया हमने। उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस, वो कितना मिल रहा है उसको? 15,000। हाउ मच इट इज? 15,000। और उसका जो वो किसके लिए मिल रहा है? 3 चिल्ड्रंस के लिए। बट हमारा रूल क्या कहता है टैक्सेशन का कि हमें सिर्फ 2 बच्चों के ही लिए एग्जेम्पशंस मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस लिए है, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा कि एक्चुअल हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस शी विल गेट 15,000, लेकिन एग्जम्पशन सिर्फ 2 बच्चों का ही मिलेगा 300 के हिसाब से। सो 300 पर मंथ हॉस्टल एक्सपेंसेस हमने देखा था ना उस दिन, तो 300 इंटू 12 इंटू 2 किया 2 बच्चों के हिसाब से, तो वो आता है 7,200। तो 7,200 ही हमें एग्जेम्प्ट रहेगा, अदर बाकी का जो है वो हमें पे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे? 7,800 टैक्सेबल जो है वो लेंगे, मतलब उसको मिलता है 15,000, बस उसमें से 7,200 का एग्जेम्पशन मिलेगा और जो है वो टैक्सेबल रहेगा। तो उसका ये जो टोटल आएगा ग्रॉस सैलरी जो उसके होगी, ग्रॉस सैलरी हम बात कर रहे हैं ग्रॉस सैलरी की। अभी तक हम एचआरए में ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि सिर्फ बेसिक और डीए, क्योंकि हम एचआरए कैलकुलेट, और एचआरए का रूल है कि हमें बेसिक, डीए और कमीशन, इसी पे हमें एचआरए कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं इसका ग्रॉस सैलरी विथ पीएफ। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये हमने देखा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना, जिसमें हमें
एग्जाम्पशंस मिलेगा, जिसका बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और जब भी हम कंपनी छोड़ के जाएंगे उसमें हमें टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई शक है तो पूछो, नहीं समझा है तो भी पूछिएगा, ताकि आप 10 बार पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, कोई इश्यू नहीं है। तो इसका टोटल ग्रॉस सैलरी जो आता है वो आता है 5,14,800। ठीक है, यस मैम। अभी हम सेकेंड केस देखेंगे उसका, जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है ना। रिकॉग्नाइज क्योंकि एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन रहता है और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, जो सैलरी में से डिडक्ट होता है एम्प्लॉय के। तो वो है रिजर्व प्रोविडेंट फंड जिसे हम बोलते हैं। तो वो हम देखेंगे, उसका बेसिक सैलरी उतना ही लेना है 3,60,000, उसका डीए वही रहेगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसके बाद 1/3 जो 1/4 डीए और 3/4 डीए हमने ले लिया, फिर उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ हमने लिया 48,000। ठीक है, अभी एग्जेम्पशंस जो कैलकुलेट किया है यहाँ पे, वो एग्जेम्पशंस कैसे निकाला है, एग्जेम्प्ट कितना आया उसका और उसे कितना पे करना है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी कितना लिया है यहाँ पे 3,60,000। ठीक है, उसका डीए लिया है, सर्विस का बेनिफिट जब वो कंटिन्यूएशन सर्विस में है तो उसका डीए लिया है 24,000। ओके, 10,000 उसका जो कमीशन है वो लिया है, इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 है ना। 10,000 जो है उसका कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड भी लिया है और फिर उसको मल्टीप्लाई करके निकाला है। तो वो जो है आता है एग्जाम्पशंस, वो आता है 47,280। ठीक है, उसको माइनस किया एक्चुअल एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन से, तो 720 उसे पे करना है, सिर्फ 720 ये रिजर्व प्रोविडेंट फंड। रिजर्व मतलब उसको बाद में मिलने वाला है, ये भरेगी अभी लेकिन उसको बाद में उसका बेनिफिट मिलेगा, दैट इज। अभी इंटरेस्ट ऑन रिजर्व प्रोविडेंट फंड पे 15% के हिसाब से है ना, यहाँ पे दिया है प्रॉब्लम में कितना मिलेगा उसको 30,000 है ना। तो 30,000 हमने यहाँ पे मेंशन किया। एग्जाम्पशंस मिलेगा उसको 9.5 का जो हमें मिलता है प्रोविडेंट फंड पे है ना। एग्जाम्पशंस मतलब हम उसका कैलकुलेशन ही वैसा होता है 12%, 9.5% आपका एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉयर का 15% है तो एम्प्लॉय का 9.5% है। ठीक है, तो 9.5% के हिसाब से 19,000 आता है। ओके, डिवाइडेड बाय 15 इसलिए किया क्योंकि 15,000 दिया है वहां पे ना, तो ये आया आपका 19,000। विच एवर इज लेस उसको माइनस किया तो 11,000 आउटर में आता है। और फिर वही कमीशन ऑन टर्नओवर लिया 10,000। फिक्स कमीशन जो उसका हमने कैलकुलेट किया वो ऑलरेडी 3,000 इंटू 12 दिया ही है। बोनस लिया 5,000। सेम हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स जो पहले कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे जो उसका अगर हम सिर्फ रिजर्व प्रोविडेंट फंड लेते हैं तो इसका जो ग्रॉस सैलरी है वो कितना आता है 5,26,520। मतलब पहले कितना आया था हमारा 5,14,800 था, और सेकेंड जो हमने कैलकुलेट किया ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। ओके, so now we have calculated 5,26,520. Do you understand? Yes, यस मैम। So ये प्रॉब्लम आप नोट करिए और कल मुझे बताइए। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको ग्रॉस सैलरी देखनी है, सॉरी स्लैब देखना है। तो हाउ मेनी ऑफ यू सॉर्ट इट? किसने देखा स्लैब?
करंट ईयर का? लेट्स एक्सप्लेन प्लीज। 5 लाख तक इनकम वो तो टैक्स डिडक्शन नहीं होता ना, 6 लाख तक। हेलो, थोड़ा लाउडली बोलिए, सुन नहीं दे रहा मुझे। किसने देखा है स्लैब करंट ईयर का? इनकम जो 5 लाख तक होता है उस तब तक टैक्स डिडक्शन नहीं होता ना। 5 लाख है? आर यू श्योर? मैंने हाँ, ये yes, साल का देखने के लिए बोला था। अभी का जो स्लैब है, अभी जो निर्मला सीतारामन ने अप्लीकेबल किया है अप्रैल 2021 से, वो वाला स्लैब देखने के लिए बोला है। देखा क्या आपने? Yes, ma'am. हाँ, तो क्या है बताइए। 5 lakh to 7,000, 7 lakh 50,000 तक 10%. 7 lakh 50,000 to 10 lakh 15%. 10 lakh to 12 lakh 50,000 तक 20%. और 12 lakh 15,000 to 15 lakh तक 25%. वेरी गुड। और अभी हम सबके लिए कितना है एग्जेम्प्टेड, मतलब हम कब कितना हमें ये मिल सकता है उसमें? 5 लाख तक हम दिखा सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. 5 लाख तक हमें 0 भरना है रिटर्न, राइट? Yes, ma'am. या मतलब आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में कोई रिटर्न भरता होगा, हम लोग देखेंगे हाउ टू फिल अ रिटर्न। बस थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए उसमें। तो अभी हम 5 लाख तक हमारा जो इनकम है हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो जो भी एग्जेम्पशंस है वो मिला के हमारा रिटर्न कितना आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए। टैक्स लाइबिलिटी हमारी 0। अब जो भी बिजनेसमैन है, जिनका भी एग्रीकल्चर इनकम है, वो तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब आप काफी अच्छे बच्चे हो कि सब देख रहे हो। वेरी नाइस। कल आप मुझे एचआरए का और प्रोविडेंट फंड का बताओगे, ठीक है, कि अभी लेटेस्ट में क्या प्रोविजन है एचआरए की और प्रोविडेंट फंड की। ठीक है, ये तो हम 90-20 का देख रहे हैं। ये साल में उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं वो आपको देखना है, कल मुझे बताना है। गॉट इट? और ये जो प्रॉब्लम है रथी नाम का, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट Yes, लीजिए। ma'am. यस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सॉल्व करना है। इसका तीनों भी यस। जब ईयर का जो इनकम 5 लाख तक नहीं है तो उसका रिटर्न 0% भरना चाहिए क्या? नील रिटर्न यस यस नहीं यस भरना, यस नहीं भरना यस चाहिए। यस 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 भरना ही है। अभी देखिए, जो अभी नया रूल आया है वो कहता है भले ही आपका रिटर्न 0 हो लेकिन भरना है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले आपको देख रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स इवेट्स कर रहे हैं, है ना, मतलब भर ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि 0 है 0 है। लेकिन ये मत भूलिए कि डिपार्टमेंट के पास आपके सारे डिटेल्स है, आपका आधार कार्ड उनके पास कनेक्ट है, आपके बैंक अकाउंट आपके पास कनेक्ट है। ठीक है, आपने विजय माल्या का केस सुना ना, अभी क्या किया उन्होंने, सुना ना? तो एक दिन वो आपकी भी ये कर सकते हैं। तो वैसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आपको 0% वॉट एवर द इनकम कम्स आपको शो करना ही है। 0 है तो भरने में क्या दिक्कत जा रही है? 0 है तो भरिए ना, एक फॉर्म ही तो फिलअप करना है और ऑनलाइन ही पे करना है आपको, है ना। लेकिन भरिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप भरेंगे ही नहीं और एक दिन आ गई आपका डिपार्टमेंट आ गया आपके घर, बताएंगे, बोलेगा दिखाओ हमारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। सारे भरे हैं तो कुछ नहीं करेगा, और आपने कुछ भरा ही नहीं तो वो तो जो है वो सुनेगा ही नहीं, जो है सब बटोर के लेके जाएगा। गॉट इट? यस मैम। यस। सो 0 भी है तो आपके ही तो डाउट क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अभी हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है ये सारी चीजों के मामले में। आप बिल्कुल किसी चीज को अवॉइड मत कीजिए, निग्लेक्ट मत कीजिए। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम Yes, आप ma'am. सॉल्व करिए। कल हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, सो टेक Okay, केयर, ma'am. बाय बाय, सी यू टुमारो। और कल का 2 एचआरए का और प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन देखिए, लेटेस्ट वाला। Okay, ओके ma'am. मैम। Bye, ma'am. Okay, Thank ma'am. you. Thank you. बाय Thank you, बाय, ma'am. हैव अ गुड डे, थैंक यू।